عائشہ، میرے والدین مجھے شہر پڑھنے بھیج رہے ہیں۔ مریم، مجھے چھوڑ کے مت جا۔ کاش یہ میرے اختیار میں ہوتا، لیکن وعدہ کر مجھے کبھی بھولے گی نہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ بیٹی، تمہارے تایا نے ایک نیک شریف لڑکا دیکھا ہے، نوکری کرتا ہے، گھر میں ماں اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ تائی، ابھی اماں کو گئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، یہ وقت شادی کا تو نہیں ہے۔ زمانہ بھلائی نہیں دیکھتا، یہ رشتہ نہیں ٹھکرانا، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ عائشہ تڑپ گئی مگر حالات کے آگے مجبور تھی۔ بہو، یہ برتن ابھی تک کیوں نہیں دھوئے؟ ہمارے گھر میں سستی نہیں چلتی۔ عائشہ اپنی ساس کے پاس گئی اور کہا، اماں جی، میری دوست مریم نے مجھے اپنی پارٹی میں بلایا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جانا چاہتی ہوں۔ واہ، ابھی شادی کو کتنا وقت ہوا ہے اور تمہیں پارٹیوں کی سوچی ہے؟ بہو کا فرض ہے گھر سنبھالنا، نہ کہ آوارہ گردی کرنا۔ ہمارے گھر کی عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے اور تم اسے برباد کرنا چاہتی ہو۔ بہتر ہے ایسی خواہش اپنے دل سے نکال دو، یہ گل تیرے بس کا نہیں ہے۔ ہم نے تجھے بہو بنایا تھا، بوجھ نہیں۔ ہاں، ہمیں تیرے جیسے کمزور انسان کی ضرورت نہیں، بہتر ہے اپنا سامان باندھ اور یہاں سے نکل جا۔ گاؤں کے ایک کچے مکان میں عائشہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر میں غربت تھی مگر محبت اور سکون کی کمی نہیں تھی۔ عائشہ بیٹی، آ کے کھانا کھا لو۔ جی امی، کھا رہی ہوں، پھر مریم کے گھر کھیلنے جاؤں گی۔ بیٹی، وہ بڑے گھر کے لوگ ہیں، بار بار جانا اچھا نہیں لگتا۔ امی، وہ میری سب سے اچھی سہیلی ہے، برا نہیں مانے گی۔ عائشہ اور مریم ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ عائشہ غریب گھرانے کی بیٹی تھی جبکہ مریم بڑے زمیندار کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر دونوں کی دوستی بے مثال تھی۔ ایک دن اسکول میں مریم نے عائشہ کو بتایا، عائشہ، میرے والدین مجھے شہر پڑھنے بھیج رہے ہیں۔ مریم، مجھے چھوڑ کے مت جا۔ کاش یہ میرے اختیار میں ہوتا، لیکن وعدہ کر مجھے کبھی بھولے گی نہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ عائشہ گاؤں ہی کے اسکول میں رہ گئی اور پڑھائی زیادہ نہ کر سکی، جبکہ مریم شہر جا کر ڈاکٹر بن گئی۔ کئی سال بعد مریم اپنی ماں سے ملنے گاؤں آئی اور سیدھی عائشہ کے گھر پہنچی۔ السلام علیکم، اندر آنے کی اجازت ہے یا باہر ہی خریدوں؟ ارے مریم، آ جاؤ، تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ چچی، آپ لیٹے رہیں، اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بیٹی، بس بیماری ہے، اللہ شفا دے گا۔ عائشہ کی ماں سخت بیمار ہو گئی اور اس کی شادی کی فکر میں مبتلا تھی۔ بیٹی مریم، میں چاہتی ہوں عائشہ کی شادی ہو جائے، مجھے اپنی فکر نہیں، بس اس کا سہارا بن جائے کوئی۔ اماں کو کیسے چھوڑ دوں، وہ اکیلی رہ جائیں گی۔ لیکن اگر شادی نہ کی تو بعد میں اور مشکل ہو جائے گی۔ اس وقت ماں کی آخری خواہش پوری کر دو۔ مریم نے عائشہ کو ایک خوبصورت دوپٹہ تحفے میں دیا اور کہا، عائشہ، جہاں بھی رہو گی، شہر ہو یا سسرال، ہماری دوستی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر خود کو اکیلا سمجھو تو میرے پاس آ جانا۔ میری پیاری سہیلی۔ وقت گزرتا گیا۔ مریم کی شادی ایک ڈاکٹر سے ہو گئی اور وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، لیکن گاؤں آ کر بھی عائشہ سے نہ مل سکی۔ ایک دن مریم نے ضد کی کہ وہ عائشہ سے ملنے ضرور جائے گی۔ جب وہ پہنچی تو خبر ملی عائشہ کی ماں انتقال کر چکی ہے اور اب عائشہ بالکل تنہا رہ گئی۔ مریم کے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا۔ اس نے سوچا، میں اپنی سہیلی کی خوشی اور دکھ میں برابر شریک ہوں گی۔ ماں کے انتقال کے بعد عائشہ تنہا ہو گئی۔ جب مریم گاؤں پہنچی تو دیکھا کہ عائشہ لوگوں کے بیچ بیٹھی روتی جا رہی ہے۔ مریم کے آتے ہی وہ چیخ اٹھی، مریم، اماں چلی گئیں، سب ختم ہو گیا، میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ نہیں عائشہ، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مریم نے کافی دیر تک عائشہ کو حوصلہ دیا، اسے کھانے پر مجبور کیا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کچھ دنوں بعد عائشہ کی تائی بتاتی ہے کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ بیٹی، تمہارے تایا نے ایک نیک شریف لڑکا دیکھا ہے، نوکری کرتا ہے، گھر میں ماں اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔
ताई, अभी अम्मा को गए 2 महीने भी नहीं हुए। ये वक्त शादी का तो नहीं है। जमाना भलाई नहीं देखता, ये रिश्ता नहीं ठुकराना वरना बाद में पछताना पड़ेगा। आयशा तड़प गई मगर हालात के आगे मजबूर थी। मरियम को ये सब खबर मिली तो वो फौरन गांव पहुंची। जब लड़के वाले देखने आए तो मरियम ने भी इनसे सवालात किए। लड़का बज़ाहिर सीधा साधा और मेहनती निकला। आयशा, देखो हालात के मुताबिक ये रिश्ता बेहतर लग रहा है। ठीक है मरियम, अगर तुम कहती हो तो मैं हाँ कर दूंगी। यूं रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के दिन करीब थे। मरियम शहर से जेवरात और कुछ पैसे लेकर आई। आयशा, ये रख लो, जरूरत पड़ेगी, किसी को बताना नहीं। बहन, इसकी क्या जरूरत थी? तुम आ गई, यही मेरे लिए काफी है। मैं तुम्हारी बहन हूँ और बहन कभी मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटती। शादी के दिन आयशा के ताया ने कहा, बेटी, तेरे जाने के बाद ये मकान किराए पर चढ़ा देंगे ताकि अखराजात पूरे हो सकें। मरियम को शक हुआ कि ये लोग मकान हथियाना चाहते हैं, मगर आयशा ने सब्र किया और कहा, जाने दो मरियम, झगड़ने का फायदा नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। सादगी से निकाह हुआ और आयशा की रुखसती हो गई। रुखसती के वक्त आयशा फूट फूट कर रोने लगी। मरियम, लगता है मेरा सब कुछ चला गया। नहीं आयशा, एक घर गया है तो दूसरा मिल भी तो रहा है, हौसला रखो। मरियम का दिल भारी था मगर उसने सहेली को दुआओं के साथ रुखसत किया। रुखसती का दिन था। आयशा दुल्हन बनी अपने ससुराल पहुंची। गांव के लोग जमा थे, ढोल बज रहे थे और हर कोई खुशी से झूम रहा था। ससुराल वालों ने भी बड़े अच्छे अंदाज में इस्तकबाल किया। सब मुस्कुरा रहे थे जैसे वाकई उसे अपनी बेटी समझ रहे हों। आओ बहू, ये घर अब तुम्हारा है, हमेशा खुश रहो। चलो, अंदर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा, शुक्र है मेरा नसीब अच्छा है, अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारा कर दिया है। वो मुतमईन और पुरसुकून महसूस कर रही थी, लेकिन आयशा को ये मालूम नहीं था कि ये खुशी सिर्फ कुछ लम्हों की है। दूसरे दिन वो खुशबू और मोहब्बत का माहौल जैसे गायब हो गया। चेहरे बदल गए, लहजे सख्त हो गए। वो मुस्कुराहटें जो कल तक आयशा का इस्तकबाल कर रही थी, आज तंज और बात बात पर तनकीद में बदल चुकी थी। बहू, ये बर्तन अभी तक क्यों नहीं धोए? हमारे घर में सुस्ती नहीं चलती। आयशा ने चुपचाप सर झुका लिया। कल तक जो शोहर मोहब्बत भरी बातें कर रहा था, आज वो भी ला ताल्लुक नजर आ रहा था। तुम्हें कुछ भी सलीका नहीं है? मेरी माँ को नाराज क्यों करती हो? आयशा का दिल टूट रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब ये सफ़र इतना आसान नहीं है। ससुराल वाले ज़रा ज़रा सी बात पर ताने देने लगे। खाने में नमक कम हो तो तंज, सफाई में मामूली कमी हो तो ताने। लड़की तो लाए थे बेटी बना के, मगर लगता है ये तो बोझ ही बन गई। आयशा अंदर ही अंदर रोती रहती। हालातों के आगे मजबूर थी। ना बाप था, ना भाई। माँ थी, वो भी इंतकाल कर गई। एक छोटा सा मकान था जिस पर उसके ताया ने कब्जा कर लिया। इसका कोई और ठिकाना नहीं था। वो चुपचाप सब कुछ सहती रहती और सोचती थी, काश ये सब ख्वाब होता। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा तल्ख थी। कुछ दिन गुजरे। आयशा की ज़िंदगी एक सख्त आजमाइश में बदल चुकी थी। ऐसे में उसकी पुरानी दोस्त मरियम ने फ़ोन किया। आयशा, हमारी तरफ एक छोटी सी पार्टी है, सब दोस्त जमा होंगे, तुम्हें भी जरूर आना है। आयशा का दिल धड़क उठा। कितने दिनों बाद उसे सुकून और अपनों से मिलने का मौका मिल रहा था। उसने फौरन कहा, हाँ मरियम, मैं जरूर आऊंगी, बस सास से इजाजत लेनी है। आयशा अपनी सास के पास गई और कहा, अम्मा जी, मेरी दोस्त मरियम ने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं जाना चाहती हूँ। वाह, अभी शादी को कितना वक्त हुआ है और तुम्हें पार्टियों की सूझी है? बहू का फर्ज है घर संभालना, ना कि आवारागर्दी करना। सास के लहजे ने आयशा का दिल तोड़ दिया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हमारे घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है और तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो। बेहतर है ऐसी ख्वाहिश अपने दिल से निकाल दो। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से अपने कमरे में वापस लौट आई। उसका दिल कह रहा था, काश मेरा आजाद होती, काश कोई मुझे समझ पाता। वक्त गुजरता गया। सास और शोहर का रवैया दिन ब दिन सख्त होता गया। आयशा की खामोशी को कमजोरी समझा जाने लगा। ये गल तेरे बस का नहीं है। हमने तुझे बहू बनाया था,
बोझ नहीं। हाँ, हमें तेरे जैसे कमजोर इंसान की जरूरत नहीं। बेटर है अपना सामान बांध और यहाँ से निकल जा। ये अल्फाज सुनकर आयशा के कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसे बगैर किसी सहारा और बगैर किसी पनाह के घर से निकाल दिया गया। वो रात की तारीकी में सड़क पर खड़ी थी। आंसू बहते रहे, दिल टूटता रहा, मगर साथ देने वाला कोई ना था। अगले दिन मरियम अचानक आयशा के ससुराल पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया तो सास दरवाजे पर आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा से मिलने आई हूँ। वो अब इस घर की नहीं रही, हमने उसे निकाल दिया। ये सुनकर मरियम के कदम डगमगा गए। उसका दिल कांप गया, आंखों से आंसू निकल आए। क्या आपने उसे निकाल दिया? वो कहाँ गई? वो तन्हा है, वो कहाँ जाएगी? सास ने बेरुखी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मरियम तड़प उठी और आयशा को ढूंढने निकल गई। आखिरकार गली के एक कोने में आयशा टूटे दिल और खाली नजरें लिए बैठी मिली। आयशा, ये क्या हाल बना रखा है? मरियम, मुझे घर से निकाल दिया गया। मेरे पास कोई सहारा नहीं। नहीं आयशा, अब तू अकेली नहीं है। चल मेरे साथ चल, ये मेरा घर ही तेरा घर है। मरियम ने आयशा को सहारा दिया, उसे अपने घर ले गई और फैसला किया कि वो उसकी तालीम का खर्च उठाएगी ताकि आयशा अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। मरियम के घर में आयशा को पहली बार सुकून का एहसास हुआ। वो जानती थी कि अभी रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन उसके साथ मरियम जैसी बहननुमा दोस्त मौजूद थी। आयशा, अब वक्त है कि तू अपनी ज़िंदगी संवारे। मैं तेरी तालीम का खर्च उठाऊंगी, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि तू हिम्मत नहीं हारेगी। मरियम, मैं वादा करती हूँ, अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। मैं सबको दिखाऊंगी कि एक यतीम बेटी भी अपनी पहचान बना सकती है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। आयशा ने सख्त मेहनत की, रातों को जाग कर पढ़ाई की और एक एक इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। मरियम हर कदम पर उसका साथ देती रही। वक्त के साथ आयशा ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। नताइज के दिन जब उसके हाथ में डिग्री आई, आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये ख्वाब जो कभी नामुमकिन लगता था आज हकीकत में बदल गया। मैं जानती थी आयशा, तू कर दिखाएगी। अब दुनिया तेरी कामयाबी देखेगी। कुछ ही अरसे में आयशा को एक बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर नौकरी मिल गई। वो अब खुद मुख्तार थी, अपने बलबूते पर कमाती थी और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी मेहनत से गाड़ी, अपना घर और एक नई पहचान हासिल कर ली। अब मैं दूसरों की मोहताज नहीं रही। मेरी पहचान मेरी मेहनत है। ये वही आयशा थी जिसे एक दिन घर से बेदखल कर दिया गया था। आज वो अपने कदमों पर खड़ी थी और उसकी कामयाबी दूसरों के लिए मिसाल बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया और आयशा की कामयाबी के चर्चे हर तरफ होने लगे। टीवी पर इंटरव्यूज़, अखबारों में खबरें और लोग उसे हिम्मत और सब्र की मिसाल कहने लगे। ये वही आयशा है जिसे हमने घर से निकाल दिया था। आज तो सारे लोग इसकी तारीफें कर रहे हैं। हमने कितना बड़ा जुल्म किया इसके साथ। अम्मी, मैं भी कसूरवार हूँ। काश मैंने उसका साथ दिया होता तो आज ये वक्त ना आता। शर्मिंदगी और पछतावे में डूबे हुए वो सब आयशा के घर जाने का फैसला करते हैं। बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुझे दुख दिया, तुझे ठुकराया। आज समझ आई कि तू हम सबसे ज्यादा नेक और बाहिम्मत थी। हमें माफ कर दे। आयशा, मैंने भी तुम्हारा दिल दुखाया। आज जब सब तुम्हारी तारीफें करते हैं तो मुझे अपनी कोताहियां याद आती हैं। काश मैंने तुम्हारा साथ दिया होता। अब माफी मांगने का क्या फायदा? उस वक्त जब मुझे सहारा चाहिए था, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। जब मुझे घर चाहिए था, तुमने मुझे बेघर कर दिया। और आज जब मैं अपनी पहचान बना चुकी हूँ, तब तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारी बहू और तुम्हारी बीवी हूँ। याद रखो, एक औरत कमजोर जरूर हो सकती है, लेकिन अगर हिम्मत कर ले तो दुनिया की सब जंजीरें तोड़ देती है। आयशा के अल्फाज पत्थर की लकीर बन गए। ससुराल वाले सर झुकाकर वापस चले गए और आयशा अपनी कामयाबी के सफ़र पर और भी मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ने लगी।